Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss NCHM CTZ Hotel Management Entrance Exam most expected question, and that is also from the vocab part. Here we are going to discuss synonyms and antonym for the exam. जो भी important synonyms and antonyms है जो कि most probably आप exam में face करोगे या फिर आपको solve करने के लिए मिलेंगे. So we are going to discuss that. So moving ahead, here are the some social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook. Also, you can join Telegram and a WhatsApp group. And don't forget to subscribe the channel, guys. And यस गाइज, वीडियो को शेयर करना मत भूलना बिकॉज फ्रेंड्स भी आपके देखेंगे तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. दे विल आल्सो गेट अ हेल्प अबाउट दिस. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. चलो, नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइज, जस्ट buy the full course or a sectional course, and also if you want to practice you can buy mock test. If you want to study yourself, buy the books and ebooks. For this you have to visit manualedu.com/hotel management. Also you can call us on a WhatsApp. You can call us or WhatsApp us 8828581455. Now all of the links are given in the description. Now moving ahead guys, these are the antonyms जो प्रोबेबली आपको एग्जाम्स में देखने मिलेगी और आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देखो गाइज, यहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट की एग्जाम है बेसिकली जी एनसीएसएम सीटीजी, इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड जो है वो मॉडरेट लेवल तक के मिलेंगे. मॉडरेट लेवल के वर्ड्स मिलेंगे. डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपको इजीली सॉल्व हो सकता है. इट्स अ मॉडरेट लेवल वर्ड जो कि ज्यादा करके हम डेली लाइफ में फेस नहीं करते. यू हैव टू पे प्रैक्टिस. इसके पहले आपने वर्ड पावर मेड इजी एंड ऑल दोज वर्ड्स एंड ऑल दोज मॉक टेस्ट जो भी मैन्युअल की तरफ से आपको दी गई थी, अगर आपने वो प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने वो मॉक टेस्ट दी होगी, रिविजन किया होगा, लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, देन those lectures and those practice would help you to solve this type of words. Now come to the word sophomoric. Word given is here. Now sophomoric के लिए एंटोनिम क्या होगा? इट्स अ एक्सपीरियंस. बिकॉज सोफोमोरिक का मतलब क्या होता है? दैट इज इमेच्योर पर्सन. इमेच्योर पर्सन यू कैन से इमेच्योर पर्सन, एक तरीके से जो न्यू पर्सन होता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, दैट इज सोफोमोरिक पर्सन. देन ऑस्ट्रेसाइज. ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है इंक्लूड करना, किसी को इन्वॉल्व कर लेना, दैट इज इंक्लूड और ऑस्ट्रेसाइज. एंड अपोजिट टू दैट शर्न, स्पोन एंड एक्सक्लूड. एक्सक्लूड समवन, किसी को दूर ढकेलना, किसी को दूर रखना, दैट वुड बी दी ऑस्ट्रेसाइज. Dismal. Dismal is what? Dismal is a sad thing or depressed person, and opposite to that, smiling, cheerful, excellent person, excellent behaving person, right? Ostentation. Ostentation is what? It's simply exaggeration, you can say, or making that thing exaggerative. So simple. The opposite to that would be simplicity, moderation, or inconspicuous. Now next is effeminacy. Effeminacy is about the female, right? Female. And opposite to this will be the manliness, masculine. Feminine would be the synonym for this, and virile. Now disparage करना. Disparage is something like a discourage करना सब किसी को. अगर discourage करोगे तो he would get a discouragement, and if you praise him he would get the encouragement. So praise would be what? Antonym. Laud and the acclaim would be the antonym for the disparage. Collision. Collision is a debating with someone or fighting with someone, that is a collide, you can say. collide करना, किसी के साथ collide होना, clash होना would be the synonym for the collision. And antonym for this, conciliatory बोलो या फिर supportiveness बोलो, all those are the antonym for the collision. Stationary क्या होती है? It's a movable thing, so it would be moving. Then standing. Stationary का मतलब क्या होगा? It's a moving thing. Opposite to that would be standing हो सकता है, frozen हो सकता है, sticked thing हो सकती है जो कि एक जगह पे है, stuck thing हो सकती है जो कि एक जगह पे है, तो उसे हम क्या कहेंगे? It's a opposite to the stationary. Expand होना. एक्सपैंड के लिए अपोजिट क्या होगा? श्रिंक, फॉल ऑफ, कोलैप्स एंड डिफ्लेट. दिस इज द इजी. डिफ्लेट इंटरेस्टिंग वर्ड है, थोड़ा ध्यान रखना, मे बी एग्जाम में आपको मिलेगा. सेरेन के लिए क्या होगा अपोजिट? इट्स एगिटेटेड, अनग्लूड, अनस्ट्रंग एंड कमिट. नाउ दिस आर दी सम एंटोनिम जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है गाइस. याद रखना, एंटोनिम सिनोनिम में एक आइडिया ये भी है कि आप सफिक्स को देख लो. सफिक्स को देख के आप ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सारी चीजें चेक करो. वर्ब है, अगर वर्ब होगा एंटोनिम तो वर्ब के लिए वर्ब ही एंटोनिम होगा. दैट इज आल्सो द सेंसिबल आइडिया टू एलिमिनेट दी वर्ड्स. ओके, तो ये आइडियाज यूज करो जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ. अल्दो आपको मीनिंग नहीं पता होगा लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर जाओगे. मे बी अगर 4 है तो 4 में से 2 एलिमिनेट कर लिए तो 2 की पॉसिबिलिटी होती है. नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. कंटेक्चुअली अगर कहीं से भी मीनिंग समझ में आता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर. चलो, मूविंग टू द सिनोनिम्स. Now these are the some synonyms जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आपको एग्जाम्स में मिलेंगे. प्रोबेबल क्वेश्चंस है. इन्फ्रिजिंग करना मतलब फॉलो नहीं करना, कोई रूल को फॉलो नहीं करोगे, दैट मींस यू आर इन्फ्रिजिंग समथिंग और समथिंग कॉन्ट्रावेनिंग. ब्रीच कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, रूल को ब्रेक करना. तो दीज आर दी ऑल सिनोनिम फॉर दी इन्फ्रिंज.
डेरिसिव के लिए सिनोनिम क्या होगा? इट्स अ मॉकिंग, jeering, teasing. It's a teasing something. Derisive is a what? It's an action. So derisiveness, it's a what कि आप किसी को टिस कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो. Snide बोलो, disdainful, irritating person. Then corpulent के लिए क्या यूज करोगे सिनोनिम? फैट होगा, obese होगा, plump, portly और burly. Then unscrupulous is corrupted. जो करप्टेड होता है दैट इज अनस्क्रपलस. अनप्रिंसिपल्ड या फिर रेप्रोबेट, राइट. अनप्रिंसिपल्ड क्यों बोला गया? बिकॉज करप्टेड पीपल डोंट हैव एनीथिंग, राइट. उनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई मोरालिटी प्रिंसिपल नहीं होता. दैट इज सिंपली अनप्रिंसिपल्ड. नाउ जिमक्रैक थिंग्स आर चीप थिंग्स. जो चीप थिंग होती है, जिनकी वैल्यू नहीं होती, वर्थ नहीं होती, वर्थलेस यू कैन से. पुअर, टेरिबल थिंग, बहुत ही बुरी थिंग होती है, वर्स्ट. नाउ इंसिपिड इज सिंपली विच इज tasteless, right? तो इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? इट्स अनइंटरेस्टिंग. टेस्टलेस वुड बी द अनदर सिनोनिम फॉर दिस. एंड लैकिंग इन स्पिरिट यू कैन से आल्सो. इंसीडियसली वुड बी द सीक्रेटली. इंसीडियसली का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली कुछ चीज करते हो, दैट इज इंसीडियसली. इन अ सीक्रेट मैनर यू कैन, इन अदर वर्ड यू कैन से इन अ सीक्रेट मैनर. abashed is something like that कि आप किसी को embarrassed कर रहे हो, that आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो जिससे कि उनको शेम्ड फील हो रहा है, क्रश्ड फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है. दैट इज ऑल्सो abashed. नाउ इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? इट्स अ रिलेंटलेस, इनएविटेबल, जो कि फोर्सिन नहीं है, जो कि आप रोक नहीं सकते, जो कि अनस्टॉपेबल है. तो अनस्टॉपेबल इज अनदर सिनोनिम फॉर दिस. प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी है, एंड वुड बी द 100% प्रोबेबिलिटी, वुड बी द 1000% प्रोबेबिलिटी, वुड बी द इनफिनाइट प्रोबेबिलिटी. सो इट्स अ इनएविटेबल इन शॉर्ट. नाउ पॉसिबल, inelectable would be the one synonym for the inexorable. guys देखो, अभी inelectable जो है ऐसा वर्ड है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज नहीं करते ना. तो प्रोबेबल सिचुएशन इज दैट कि दिस वर्ड वुड कम इन द एग्जाम. ये भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ऐसे भी समझो कि ये एक वर्ड दिया हुआ है, इसके लिए सिनोनिम्स दिए हुए, सो डजंट मीन दैट कि यही वर्ड आना चाहिए. इट इज पॉसिबल दैट कि यू विल फाइंड दिस वर्ड आल्सो. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो. नाउ pragmatic समथिंग पर्सन, समवन हैविंग अ डोगमा. डोगमास और डोगमा यू कैन से दैट इज आइडियल होना, कोई आइडियलिस्टिक आइडिया. किसी के अप्रोचेस होते हैं, किसी के डोगमास होते हैं, आइडियल्स होते हैं. आइडियल्स इन द सेंस व्हाट? ओपिनियंस होते हैं इन शॉर्ट. तो ओपिनियनेटेड पर्सन होगा, आइडियलिस्टिक पर्सन होगा. रियलिस्टिक पर्सन मतलब क्या? तो जिसके कुछ ओपिनियन होते हैं, जो हर चीज के पीछे ओपिनियन रखता है, रियलिस्टिक थिंकिंग करता है, दैट पर्सन इज अ प्रैग्मेटिक पर्सन इन शॉर्ट. नाउ व्हाट, देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, दीज आर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड्स व्हिच वुड यू विल सी इन द एग्जाम. और इनके सिनोनिम और इनके एंटोनिम्स भी आपको वर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज एंड रिवाइज करो. वीडियो को देखो. वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे जो वर्ड्स आपको मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बोला इनलेक्टेबल है जो, अभी इसको आपको क्या करना है? यू हैव टू सर्च दैट कि इसके भी कुछ सिनोनिम्स होंगे. दैट वर्ड वुड बी कम इन द एग्जाम. वो भी आपको एग्जाम में मिल सकता है. Also you can give the mock, you can practice those words and also यहाँ पे रिवाइज करने के बाद आप मॉक टेस्ट दो. मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में से बहुत ज्यादा हेल्प होगी, टॉपिक टेस्ट में से बहुत ज्यादा हेल्प होगी. इफ यू डोंट हैव दैट मॉक टेस्ट, so you can directly visit to our website and you can buy those mock tests from here. Simply click on the hotel management and then you will find here the mock test. Simply click on the mock test show packages and you will find here a lot of mock tests. यहाँ पे 10 full length mock test है, 10 sectional mock test है, you can buy. Then also here you will find 150 plus test जो कि यहाँ पे hotel management के ऊपर ही है, so you can give those mock tests. Also if you want to start your preparation, so you can buy the full course here. You will find the full course. All those type of full course are here. This much of the today's video and this much of this video. So I hope you got the idea about the vocab, which type of questions would be there in a synonym and antonym. So start your preparation and start practicing it, start revising it. अभी important मिले हैं तो उसके ऊपर practice करो, revise करो and do best in your exam. Best of luck for the exam and thanks for watching the video. Don't forget to subscribe the channel and don't forget to share this video, like the video. If you learn something, then don't forget to like this video. Thank you so much.